Hello, good morning everyone. Today I will talk about transfusion transmitted infection. What is a transfusion transmitted infection? Transfusion transmitted infection are infections resulting from the introduction of a pathogens into a person through blood transfusion. Mm, Blood transfusion and blood products, packed RBC, platelets, fresh frozen plasma. A wide variety of organisms, including bacteria, virus, prions, and parasites, can be transmitted through blood transfusion. Now come to second slide. This is a blood transfusion. Blood transfusion is a life-saving intervention that has an essential role in patient management within healthcare system. The establishment of system to ensure that all donated blood is a screening for transfusion infection is a core component of every national blood program. Characteristics of transfusion transmissible agents. In 1991, the World Health WHO Global Program on AIDS and then League of Red Cross and Red Crescent Society published consensus statement of screening blood donation for infections agent through blood transfusion. In order to be transmissible by blood, the infectious agent or infection usually has the following characteristics: presence in the blood for long period, sometimes see high titers, stability in blood stored at 4 degree centigrade or lower, uh, incubation long period before the appearance of clinical sign. This is patient asymptomatic phase or only mild symptoms in the blood donor, hence not identifiable during the blood donor selection process. And as a large volume of blood or blood components are given to patient during transfusion therapy, even a blood unit with a low viral load may cause infection in the recipient. The various markers of infection appear at different times after infection. Each transfusion transmitted infection has a one or more window periods ranging from a few days to months depending on the infectious agent, the screening marker used and the screening technology employed. During this period, the particular screening marker is not detectable in a recently infected individual even though the individual may be infectious. Some infections, such as a human cytomegalovirus, present a risk to certain recipient groups only. In this situation, the selective screening of donation for the specific recipient is normally adopted. Organism causing transfusion transmitted infection circulating in the blood of the donor can pass on the recipient. Only appearance healthy individuals are accepted as donors' chance of transmission. By septic patients are very remote asymptomatic individuals with the organism in their blood, and more important threat: virus, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis G, delta. Then HIV 1 and HIV 2. Cytomegalovirus, parvo, B19, waste Nile virus,
Epstein-Barr virus, hepatitis B6, hepatitis virus 8, hepatitis A, colorado tick fever, prions agenta variant, Creutzfeldt Jakob disease, and rickettsia. Parasites में मलेरिया all species, Trypanosoma cruzi, Babesia, Lismenia, Toxoplasma gondii, Filaria. This is blood transfusion infections. Bacteria form is infection Treponema pallidum caused by the syphilis, Pseudomonas species, Streptococci, Salmonella species caused by Salmonella typhi, typhoid fever, Yersinia, enterocolitis, E. coli, diphtheroids, bacteroids, Serratia liquefaciens, and marsensis. Bacillus species, Brucella species, Clostridium perfringens. And bacterial contamination is more frequent in the platelet concentration than in the red blood components. This is because bacteria can survive and propagate under the storage condition. Typically used for platelets 22-24 degrees centigrade, but less so for RBC 1 to 6 degrees centigrade. More commonly, contamination occurs during blood collection, improper disinfection, manufacturing site, and during handling of blood products. Predominating bacteria isolated, usually commensal of the skin or intestine. As per Indian guideline, हमारी कहती है कि रूटीन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ ब्लड की should be done on 1% of the blood unit collected, or 4 per month is higher. So okay, strategy to reduce transfusion transmitted infections. The various strategy to reduce TTIs included all screening strategies should employ at minimum the detection of antibody, because the identification of specific antibodies is still the most reliable screening method. They should preferably also employ the detection of antigen. Antibody may be detected approximately 3 weeks after infection and approximately 6 days after antigen is first detected. Screening for TTI, screening for other TTI varies depending upon the local policy guideline based on the local prevalence data. स्क्रीनिंग का मतलब है कि मतलब HIV है, HBsG है, SCV है, बिडाल है टाइफाइड फीवर के लिए, मलेरिया टेस्टिंग है, दैट सबके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं. तो ये देन इज अपन द लोकल पॉलिसी गाइडलाइन प्रेवलेंस डाटा. स्क्रीनिंग डन फॉर HIV, HBC, सिफिलिस एंड मलेरिया, इन सबके लिए ही अवेलेबल है. देन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा नॉन रिएक्टिव है तो पोस्ट डोनेशन काउंसलिंग, देन रिएक्टिव है अगर तो इनडिटर्मिनेटेड, तो इनडिटर्मिनेटेड रिएक्टिव भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेटेड बोलते हैं. तो देन हम क्या करेंगे, फिर स्क्रीनिंग के बाद हम कंफर्मेटरी टेस्टिंग करते हैं, वही न्यू सैंपल की या रिपीट टेस्ट, या फिर हम किसी जैसे HIV है, HIV सबसे पहले हम स्क्रीनिंग किया गया, फिर देन क्या हुआ कि स्क्रीनिंग में रैपिड कार्ड में पॉजिटिव आ गया, फिर मैंने उसको क्या किया है, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम रेफर कर देते हैं ICTC को, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर के लिए. अब वहाँ पे जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ से जब कंफर्मेटरी के लिए 3 टेस्ट लगाए जाते हैं, उसको हम मतलब बोलते हैं अगर कंफर्म हो गया है, ठीक है, तो फिर वो पॉजिटिव है, बट अगर नहीं हुआ है तो अगर नहीं वहाँ पे रिएक्टिव किया है तो वो नेगेटिव हो गया है. तो यहाँ पे जैसे कहा गया रिएक्टिव,
इन कंफर्मेटरी टेस्टिंग ऑन सेम और न्यू सैंपल। देन निगेटिव हो गया तो पोस्ट डोनेशन काउंसलिंग होगी। देन ऐड टू डोनर पूल फॉर रिपीट डोनेशन के लिए। लेकिन अगर हमारी कंफर्मेटरी टेस्टिंग पॉजिटिव है तो सिफिलिस भी होगा, मलेरिया के लिए भी होगा, HIV इन्फेक्शन के लिए भी होगा और हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए। अगर पॉजिटिव सिफिलिस है तो रिफर करते हैं स्टडी क्लिनिक की तरफ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कॉज क्या करती है सिफिलिस, ट्रेपेनोमा पैलेडियम करता है। देन अगर मलेरिया है तो रिफर टू हम क्या करेंगे, जनरल फिजिशियन को कर देते हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है कंफर्मेटरी HIV तो रिफर क्या करते हैं ICTC को, जैसे मैंने आपको भी बताया है। ICTC में क्या होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग होती है जो सेंटर पे की जाती है। किसी भी पेशेंट को मतलब अकेले में बुला के उससे इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं तो उसको रिफर कर दिया जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी में क्या करते हैं, उसमें भी है कि हम फिजिशियन को क्लियर कर देते हैं, जनरल फिजिशियन को, तो फिर वो अपने हिसाब से क्लियर करते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सेटिस्फाई के लिए बहुत सी प्रॉपर्टीज को हम फॉलो करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे आवश्यकता है क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है, जो डिटेक्ट करता है अर्ली इन द फेज ऑफ इंफेक्शन एंड रैपिड के लिए। और देयर इज ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम टेस्ट बेस्ड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडीज टू हाईली सेंसिटिविटी टेस्ट बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं नेट। तो ये हेल्प किसको करता है, डिटेक्टिंग इन्फेक्शन इन विंडो पीरियड। विंडो पीरियड द पीरियड ऑफ अर्ली इन्फेक्टिविटी व्हेन ए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इज ए नॉन रिएक्टिव, उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड जो डिटेक्ट करता है। देन TTI को स्ट्रेटजी जो रिड्यूस कराते हैं, वो स्टोरेज एक टेम्परेचर होता है जिसका हम कंडीशन में रखते हैं, शुड भी जो हमेशा मेंटेन की जाती है। टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और पैथोजन इनएक्टिवेशन जो होता है हमारा, वो इफेक्टिव पैथोजन इनएक्टिवेशन प्रोसीजर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स शुड बी फॉलोड। जैसे हेपेटाइटिस बी है तो टेस्ट डिटेक्शन में हेपेटाइटिस बी नेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस को एंटीबॉडीज और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन होता है। HIV में भी एंटीबॉडीज होता है। जैसे हमने अभी आपको पिछले उसमें बताया था कि साइटोमेगालो वायरस है, लिम्फेडोट्रोपिक वायरस है, पैरवो वायरस B19 है, जीका वायरस है। ये सारे भी वायरस हमारे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही करते हैं। और देन बताया था बैक्टीरिया जैसे आ गया तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन में, जो ब्लड कल्चर की बोतल रहती है। ट्रेपेनोमा पैलेडियम जो कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करता है ट्रेपेनोमा पैलेडियम। तो इसमें सिफिलिस में क्या होता है कि एंटी ट्रेपेनोमल एंटीबॉडीज होती है जो कंफर्मेटरी टेस्ट हमारा टाफा करता है। आप लोग पढ़ेंगे जब हम सिफिलिस पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसमें टाफा होता है, RPR होता है, रैपिड प्लाज्मा रेगाइन टेस्टिंग होती है। और लेकिन हाई प्रेवलेंस जो है वो BDRL है और RPR है सिफिलिस के लिए। देन अगर हम पैरासाइट की बात करें, पैरासाइट में मलेरिया है और क्या नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में तो हम एंटीजन करते हैं, टेस्ट डिटेक्शन होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें रहता है ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई, मैंने जो पढ़ाया है आपको, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई लेशमिनिया डोनोवनी, जो रिसेंट में ही पढ़ाया है, देखिएगा उसको। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, सबसे पहले हम क्या क्या लेंगे, प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं। अब वो जैसे हम आ गए हैं कि कांटेक्ट प्रिकॉशन हुआ। अब कांटेक्ट प्रिकॉशन में मैंने क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है क्या।
जैसे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आल्सो कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक प्रिकॉशन, ठीक है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस में करता है, जो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में फॉलो करते हैं। अब इसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होते हैं, एयरबर्न प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना होता है, देन क्या कहते हैं, हैंड हाइजीन्स वगैरह, ये हमारे इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल्स में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बात करते हैं कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन क्या है? Contact precaution should be followed when there is a definitive and suspected evidence of the infection, जो transmitted by direct and indirect contact during the patient care में होता है। पेशेंट केयर में हैंड हाइजीन का विशेष ध्यान देना है, गाउन, ग्लव्स, और जैसे कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन को हम आपको डायग्नोसिस के विषय से समझाना चाह रहे हैं कि 70 इयर्स की ओल्ड वुमेन है, आफ्टर सर्जरी नी का रिप्लेसमेंट के लिए गया है, आफ्टर सर्जरी बाद ट्रांसफर किया गया है उसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। 4 डे के बाद पेशेंट में डेवलप होता है एराइथीमा एंड फर्स्ट डिस्चार्ज एट द बाउंड साइट इन्फेक्शन। तो स्वैप से कल्चर को सेंड किया, स्वैप लिया गया है, बाउंड इन्फेक्शन को कल्चर के लिए लैब में भेज दिया गया माइक्रो की। तो उसमें जब लगाया गया कल्चर में तो ग्रोथ ऑफ एमआरएसए किया ये, ठीक है, और जैसे सेंसिटिविटी आ गई तो क्या हुआ कि उस पेशेंट को तो इन्फेक्शन हुआ ही है, लेकिन टोटल उसी वार्ड में 10 पेशेंट और एडमिट हैं, ठीक है, लेकिन और दो ही जो है, दो, एक या दो नर्सेज को 10 पेशेंट को हैंडल करना है। अब वो हम क्या करेंगे कि वो कैसे हैंडल करेगी कि उसी ग्लव्स से जल्दी जल्दी, अब क्या होता है वार्ड में कि दो ही है, 10 पेशेंट को देखना है, तो जिसको बाउंड इन्फेक्शन था, फर्स्ट डिस्चार्जिंग हो रहा था, उसमें तो पता चल गया है कि वो मतलब एमआरएसए का है, दिक्कत हो गई है उसको, बट अब उन्होंने क्या किया, उसी हाथ से स्टेथोस्कोप छू लिया, ब्लड प्रेशर मशीन छू ली, ठीक है, तो ये क्या है उसी ग्लव्स से, मतलब 2 दिन के अंदर क्या होगा कि उन्होंने सारे पेशेंट को अगर छुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। तो इसी वजह से कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन आ गया, गाउन है, ग्लव्स हैं, तो चाहे आप डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो देन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में क्या है कि यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को, इसको भी तो प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड थ्रू द रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे बाय द क्लोज रिस्पायरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट विद रिस्पायरेटरी सिक्रेशन। तो जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होती है उसमें रिस्पायरेटरी के ड्रॉपलेट्स बहुत लार्ज पार्टिकल में मोर देन 5 माइक्रोमीटर साइज में होती है, तो जनरेट बाय द पेशेंट कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग, तो दैट इज ए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो some infection transmitted droplet route can be significant transmitted by contact mode। तो एजेंट्स हमारे ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट्स में होंगे, डिप्थीरिया है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, निजेरिया है, पर्टुसिस है, बोफिंग कफ होता है जिसको, और निमोनिक प्लेग हो गया, ये हमारे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन से रहते हैं। अब उसी में ऐसे जैसे कोई केस अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आया है लॉन्ग टर्म से, मतलब हॉस्पिटल्स में है वो, तो कोई टाइम ऐसा होगा ना कि किसी भी फूड एरिया के टाइम, खाने के टाइम, कहीं पे भी वो मतलब इसने स्नीजिंग कर दिया है, बुफिंग, मतलब ऐसे ही खांस वगैरह दिया है, तो क्या हुआ कि अब वो अगर खाना जो सप्लाई किया जा रहा है, हो सकता है वो बहुत से बाढ़ में दे दे, ठीक है, तो उससे क्या है, बाढ़ में भी हो सकता है, वहाँ एडमिट है, मास्क नहीं लगाया, तो उससे भी इन्फेक्शन हो। कोविड में तो आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी है, स्ट्रेप्टोकोकल है, सार्स कोविड 2 जो आपने रिसेंट में ही देखा है कि बहुत ही ज़्यादा
ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में ही लिया जाता है उसको। एयरबर्न प्रिकॉशन क्या हुआ गया, हैंड हाइजीन, नेगेटिव प्रेशर रूम, N95 रेस्पिरेटर मास्क। तो अब इसमें क्या हम करेंगे एयरबर्न प्रिकॉशन में कि ये स्प्रेड करता है इन्फेक्शन एजेंट द ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी एरोसोल से। तो एरोसोल बहुत स्मॉल पार्टिकल है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर। तो इन्फेक्शन पर्सन ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एंड परफॉर्मिंग सरफेस एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। तो एजेंट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द एरोसोल में कौन कौन से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, एयरबोर्न प्रिकॉशन लिया जाता है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है, मेजलेस वायरस है, बेरिसेला, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है, एस्परजिलस, पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो फंगस में आप पढ़ेंगे। तो ये एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर में आते हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एयरबोर्न है, ड्रॉपलेट है। तो कंट्रोल में तो हम पीपीए वगैरह है, पेशेंट को प्लेसमेंट पे करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स अप्रोच टू इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल measures at earliest based on the clinical suspension. Discontinue if the patient diagnosed with a disease that does not require airborne precaution. जैसे क्वालिटी कंट्रोल मेजर पीपीए हो गया, हमारा पेशेंट प्लेसमेंट हो गया, सोर्स ब्लड फ्रॉम लिमिट ब्लड बैंक है हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एवरी 3 मंथ में, मतलब स्क्रीनिंग की मतलब कोई भी इन्फेक्शन ब्लड वगैरह है उसको हर हर 3 महीने के अंदर ही हम लोग देखते हैं। कीप ट्रैक एट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी कल्चर मतलब पूरे हम हॉस्पिटल्स की अगर सर्वलाइंस में कराते हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है कि कितने कितने मंथ हो गए हैं ब्लड को रखे हुए, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। देन इम्यूनाइज वेयर एवर पॉसिबल, इम्यूनाइजेशन होता है, हर मंथली लेना होता है कि हेपेटाइटिस का है, ठीक है, एचसीवी वगैरह के इनका क्या है वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। कीपिंग स्टाफ सेफ इज ए पैरामाउंट, कि स्टाफ हमारा जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, सेफ्टी के लिए सोचा जाता है, उसके लिए हम N95 मास्क है, वेंटिलेशन में जो भी लोग लगे हुए हैं काम है, क्लीन होता है रूम, ये सब कुछ और स्टाफ के लिए देखा जाता है। पेशेंट का प्लेसमेंट्स, थैंक यू।